So, welcome back class into another video of your science chapter, which is microorganism. So, the chapter name is microorganisms. Okay, this is our chapter in which we have discussed almost 3 classes, and this one is the 4th class. Okay, and in last class we have discussed about some useful microorganisms which are very much helpful for us. Okay, making of bread, making of curd, and making medicines, antibiotics. These things we have discussed that those parts in our previous class. Now in today's class we will discuss about some harmful microorganisms. Okay, it is just a, you can say, converse topic of the last class. So our today's topic will be harmful microorganism. So we will discuss one by one about the harmful, you can say, the harmful effects, how they harm us in our daily life. Okay, coming forward to the first point, which is about a definition. So harmful effects, when some microorganism harms us, they are called pathogens. They are called pathogens. Okay, so I am defining here pathogens. What are pathogens? So those microorganisms which are harmful for us. So write it here. Microorganisms which are harmful for us are called pathogens. Okay, so this is the definition. So you must know what is pathogen, as I have described you right now. Now what are those diseases which are caused by microorganisms? So that part we will discuss in our next point. So write it here. The causes diseases like tuberculosis, tetanus, diphtheria, cholera, etc. So there are many more diseases, but these are some common diseases which are caused by pathogens, or you can say harmful microorganisms. Okay, so harmful microorganisms, you can write here in bracket, these are also called pathogens. Yeah, so write it, and then we will move forward to one by one how it harms humans, how it harms plants, and then animals also. Note this one. Yeah, so coming forward to the next point, which is this is a point in harmful microorganisms only. So it is about diseases in humans.
diseases in humans. Okay, so first of all you must know what kind of diseases can be infected through microorganism, okay, or how it can be spread. Like it can spread through air, it can spread while you are talking to an infected person. So these are the points. So write the first point, which is communicable diseases. Diseases that spreads through air, water, food, or by physical contact. Are called communicable disease. Okay, so what are communicable disease? The diseases which can be spread through how? Through water, food, air, etc. Yeah, so these are called communicable diseases. Coming forward to the next point, let me give some example of communicable diseases like cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis, etc. These are some diseases which are caused by communicable diseases. Okay, and I mean to say that अगर आप किसी से फिजिकल कांटेक्ट करते हो या आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जूठा खाते हो या फिर आप इन्फेक्टेड पर्सन का जूठा पानी पीते हो या फिर अगर पानी में ऑलरेडी बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर हवा में अगर बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकता है. ओके, एंड वो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या क्या हैं? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड many some other are also, but these are some common diseases. Note this thing. You must also know that अभी हम यही टॉपिक कर रहे हैं डिजीज इन ह्यूमंस. You must also know that pathogens which are harmful microorganisms can also enter your body through mosquitoes, flies and some insects also. Okay, so write this. Pathogens also enters our bodies through mosquito, fly or any insect. So as you know, harmful microorganisms, it means pathogens, can attack you through any source. There are many sources: mosquitoes, flies, insects and many other sources are there. Infected water, infected food, infected person. अगर आप एक infected person के नज़दीक जाके आप उससे बात करोगे तो भी आपको harmful diseases हो सकते हैं. ओके,
सो उसके लिए हमें कुछ प्रिवेंशंस रखने चाहिए. सो इन नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट प्रिवेंशंस कि हम उससे कैसे बच सकते हैं. प्रिवेंशंस. So, sorry for the interruption. So, write the first prevention. We should cover our nose while sneezing. जब आप छींक रहे होते हो तो आपको एक हैंकी या किसी भी एक कपड़े से अपने नोज़ को कवर करना चाहिए, ताकि अगर आप बाई चांस अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो अगर आप कवर करके नहीं छींकोगे, अब कवर करके स्नीज नहीं करोगे, इन दैट केस आप सामने वाले पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हो. सो फॉर दैट वी शुड कवर आवर नोज वाइल sneezing. Okay, so this was the first prevention. We will write about some more. Note this one first. So second point about prevention, number 2. Avoid consuming uncovered फूड आइटम्स. तो जो भी अनकवर्ड फूड आइटम्स हैं उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो, उससे ना खाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है. बिकॉज जब वो अनकवर्ड होते हैं यानी कि जब वो खुले होते हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरसेस आके आराम से बैठ सकते हैं एंड हमें इजीली इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो हमें ये प्रिवेंशन भी लेना चाहिए. Coming forward to the third prevention, which is we should protect ourselves from fly and mosquitoes. फ्लाई एंड मॉस्किटो से आप खुद को प्रोटेक्ट रखो, जिसके लिए हम नेट यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम मॉस्किटो किलर्स यूज़ करते हैं, जो कि गुड नाइट वगैरह जो भी आप कॉमनली यूज़ करते हो. सो खुद को फ्लाइज और मॉस्किटोज से बचा के रखना. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे अवे फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन. स्टे अवे फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स बीमार. अगर कोई इंसान ऑलरेडी बीमार है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले डिजीज़ से, कॉलेरा या फिर चिकन पॉक्स, दिस थिंग्स, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करो, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो ताकि आप इन्फेक्ट ना हो. फिफ्थ, डू नॉट लेट water collect in coolers, tires or any other space. किसी भी स्पेस में आप पानी जमा नहीं होने दो, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया एंड वायरसेस का एक अच्छा घर बन जाता है. सो फॉर दैट यू शुड नॉट लेट द वाटर कलेक्ट एनीवेयर. कहीं पे भी वाटर को आप कलेक्ट नहीं होने देना है. जैसे कि अगर आप कूलर यूज़ करते हो तो लोग कूलर में पानी छोड़ देते हैं जमा हुआ. सो दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, लोग अगर घर कहीं पे टायर फेंका है
घर के छत के ऊपर या कहीं पे भी लोग टायर रखते हैं, तो वो टायर में भी काफ़ी लंबे टाइम तक पानी जमा रहता है, या फिर किसी भी स्पेस में आपको वाटर को जमा नहीं होने देना है। नोट दिस थिंग। नाउ we have two more points in this topic, prevention. Used injections should not be used again. एक इंजेक्शन को हमें दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे जो क्लिनिक के कंपाउंडर्स होते हैं वो पैसे बचाने के लिए यूज्ड इंजेक्शन को वापस रख देते हैं, उन्हें फिर से यूज़ कर देते हैं, एंड इन दैट केस आप इन्फेक्ट ईजिली हो सकते हो। सो दैट इज़ वेरी यू कैन से ये केस काफ़ी ज़्यादा है। सो फॉर दैट यू मस्ट नोटिस, जब भी आप इंजेक्शन लो तो वो इंजेक्शन वो एक पैकेट से फाड़ के निकाला हो, एक क्लोज पैकेट से फाड़ के निकाला हो, दैट मीन्स वो इंजेक्शन नया होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मस्ट टेक वैक्सीनेशन। और जैसे बचपन में बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, वैक्सीनेशन कराया जाता है बच्चों का, वो वैक्सीनेशन ज़रूर लें। जैसे पोलियो है एंड हेपेटाइटिस, ये सब के वैक्सीनेशन हमें बचपन में ही मिल जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। तो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वैक्सीनेशन से होता यह है कि आपका बॉडी ऑलरेडी काफ़ी सारे डिजीज़ से लड़ने के लिए रेडी रहता है। सो दीज आर सम प्रिवेंशंस। ये कुछ बचाव थे जिससे हम खुद को काफ़ी सारे डिजीज़ से बचा के रख सकते हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू दी प्लांट्स कैटेगरी, विच इज़ डिजीज़ेज इन प्लांट्स। सो कुछ प्लांट्स में डिजीज़ेज होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से डिजीज़ेज होते हैं। तो प्लांट्स में कौन से डिजीज़ होते हैं, तो फर्स्ट कॉमन डिजीज़ है सिट्रस मेकर। दिस इज अ नेम ऑफ अ डिजीज, सिट्रस मेकर। एंड ये कैसे होता है, सो काउज्ड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होता है, स्प्रेड्स थ्रू एयर, और ये स्प्रेड होता है एयर से, यानी कि ये एयर से फैलता है। सेकेंड कॉमन डिजीज इन प्लांट्स इज रस्ट। ये ज़्यादा वीट में होता है। ओके, वीट के क्रॉप्स में रस्ट ऑफ वीट। एंड ये कैसे होता है, सो काउज्ड बाय फंगी एंड स्प्रेड्स थ्रू एयर, और ये हवा से फैलता है। नोट दिस थिंग, दिस वॉज ऑल अबाउट प्लांट्स। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू एनिमल्स कैटेगरी। सो दिस इज डिजीजेस इन एनिमल्स। सो first disease in animal is anthrax, very common disease anthrax। ये कैसे होता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है, caused by bacteria। second
foot and mouth disease। ये फूट और माउथ में होने वाला एक डिजीज़ है जो एनिमल में होता है, एनिमल्स में। अफेक्ट्स कैटल्स and caused by वायरस, और ये एक वायरस से होता है। थर्ड एंड द लास्ट डिजीज़ इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग एनिमल्स में काफ़ी कॉमन डिजीज़ है एंड इट इज़ caused by fungi and bacteria। थ्रू फूड, और ये कैसे होता है? खाने से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। We have studied about the diseases caused by bacteria, and in animals category we have discussed the preventions also. So this was all about today's class. Now in next class we will discuss some more topics. Thank you class.